Good evening, everybody. I hope everybody can hear my voice and see the presentation on the screen. Excellent. So, yet another session of analytical reasoning, a quick backup session for those who have missed or want a quick revision of this topic. Today, we're going to take a look at relations, or as the question goes in Hindi, ये रिश्ता क्या कहलाता है? And believe me, guys, it's one of the easiest kind of questions which can be asked in entrance exams, right? A lot of entrance exams which have analytical reasoning section in them may have a question of relations in them. And initially, some people find it a bit confusing. कि relations बड़े confusing हैं, कैसे questions आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते. But honestly, guys, we have been doing these questions since childhood. बचपन से अगर आपको फैमिली फंक्शंस में कोई लेके जाता है और स्पेशली नानी दादी लोग घर के बड़े बुजुर्ग आपको लेके जाते हैं तो आपको कोई ना कोई सामने भटक जाता है और आपको बताएंगे ये तेरे पप्पा के जो बड़े भाई हैं उनके मम्मी के चाचा के छोकरे के लड़के की बाजू वाली की बेटी है और ये तेरे पापा के फुआ के बुआ के ननंद के ससुरे की लड़की है एंड सो ऑन right. They will keep on introducing you to different people, and over a period of time we also understand what these relations are. Now, it is exactly the same type of questions, but put in English, put in a bit of formal language. So, नाम के लिए सिर्फ reasoning है, but technically ये सारे social questions हैं, right? So, today we are going to understand what type of questions can come in relations, what are the basics of relations that we need to know, and how we can use certain tips, certain tricks, certain techniques to crack these questions. Believe me, guys, once you understand the basics, questions of relations are extremely easy to solve. So, the first question that I will be asking to all of you is when we know all of us have relatives and we have multiple relatives, how do we classify them? अगर मैं चाहता हूं कि अपने सारे रिश्तेदारों को ग्रुप्स में डालूं तो किस बेसिस में मैं ग्रुप्स में उनको डाल सकता हूं ऑन व्हाट बेसिस can I classify people into different relations, right? Types of relatives अगर मैं बोलूं तो कैसे कैसे कैटेगरीज में मैं उनको डाल सकता हूं. Now some people are saying maternal paternal mother side father side and all that. So guys, let us first take the classification first given. Stop. चलो पहला आंसर जो आया है that is mother and father side or maternal and paternal side. So do you think all your relatives can either be classified as maternal or paternal? If you think yes, put yes. Or if you think no, then put no. How many of you think it is possible to classify all relatives as either maternal मम्मी के साइड से या paternal पापा के साइड से? आपको लगता है सारे रिश्तेदार मम्मी या पापा के साइड से आ सकते हैं? जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे या तो पापा के साइड से हैं या तो मम्मी के साइड से हैं, ऐसा? A lot of students are saying yes, some of you are saying no. Okay, if those who are saying no, can you give me examples of any relation which na mummy ke side se hai na papa ke side se hai? Do you think it is possible to have relatives who are not either mummy or papa's side? That's correct. That's correct. Those who are giving me the contra example, exactly right. So the answer is you cannot classify all relatives as maternal or paternal. जिन्होंने भी कहा है कि सारे ही रिश्तेदार मम्मी पापा के साइड से हैं, जतिन दादा दादी भी पापा के साइड से ही होते हैं, पापा के पापा को ही दादा बोलते हैं, सो मेरे दादा और दादी भी पापा के साइड से ही रिश्तेदार हैं. बट नहीं, ऐसे कई सारे आपके रिश्तेदार हैं जो ना मम्मी के साइड से होंगे और ना पापा के साइड से होंगे. राइट नाउ आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिनका शायद वैसा कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा रिश्तेदार है जो ना मम्मी के साइड से है ना पापा के साइड से है, एंड दैट इज माई वाइफ. शादी से हमारे कई रिश्तेदार होते हैं, राइट? जिससे मेरी शादी होती है, the person to whom I'm married. If I'm a man, I'm married to a woman, my wife. If I'm a woman, I'm married to a man, the husband. तो जो हस्बैंड या वाइफ होता है और जो हस्बैंड के साइड के या वाइफ की साइड के सारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो ना मैटरनल होते हैं ना पैटर्नल होते हैं. एंड फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार नहीं होते. हितांशी, लेट्स गेट वन थिंग राइट. When we talk about relatives, we are talking about pure relatives. Friends are not relatives. Friends are not related to you in any way. They are simply friends.
So when we talk about relatives, we are purely talking about people who are related to us in one way or the other. Friends जितने भी close क्यों ना हो, उनको हम रिश्तेदार नहीं कहते, right? So guys, friends are not relatives. So maternal and paternal और मम्मी का साइड पापा का साइड is not a good way of classifying, because उसमें शादी वाले कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो क्लासिफाई नहीं कर सकते. तो दूसरा ऐसा कौन सा मेथड है जिसके बेसिस पे हम अपने रिश्तेदारों को क्लासिफाई कर सकते हैं? सो द इजीएस्ट वे टू क्लासिफाई योर रिलेशनशिप्स इज नंबर वन, बेस्ड ऑन जेंडर. राइट, सिंपल. या तो मेल है या तो फीमेल है. एंड ऑफ कोर्स कोई आर्ग्यू करेगा, सर आजकल तो थर्ड जेंडर भी होता है, नहीं ये भी होता है. नहीं, हम कंजर्वेटिव पोजीशन से देखेंगे तो नॉर्मली जितने भी रिश्तेदार हैं, we can simply say that either they are females or they are males, right? So the first classification point that we will always keep in mind is whether a relative is a male or a female. So the easiest way of classifying our relatives is to classify them by gender, like mother, sister, aunt, grandmother, wife, sister-in-law, female cousin, daughter, niece, ग्रैंड डॉटर. ऐसे कई सारे हैं, ये सारे लेडीज हैं और ये सारे फीमेल रिलेटिव्स में क्लासिफाई हो जाती हैं. उसी तरह फादर, ब्रदर, अंकल, फादर इन लॉ, मेल कजिन, नेफ्यू, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, ये सारे जो मेल्स हैं वो मेल रिलेटिव्स में क्लासिफाई हो जाते हैं. सो गाइज रिमेंबर, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is we will always be careful of establishing the gender of a person to establish the relationships. Okay, so the first criteria for classification, remember, if possible, get the gender. Now the second type of classification is the nature of the relationship. हमारा उनके साथ रिश्ता किस बेसिस पे है? So we can classify all the relatives on two bases of nature. एक जिनके साथ खून का रिश्ता है, यानी जिनके साथ हम कुछ ना कुछ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, राइट? सो पापा मम्मी से हमारा डायरेक्ट रिश्ता है एंड सो ऑन. और दूसरा होता है शादी का रिश्ता, जो लीगल या सोशल रिलेशन कहते हैं. सो शादी के बाद जितने भी रिश्तेदार बनते हैं, दे आर नोन एज सोशियो लीगल और सिंपली पुट लीगल रिलेटिव्स. तो ब्लड रिलेटिव्स में कौन कौन आता है? हमारे पेरेंट्स, दैट इज मदर एंड फादर, उनसे डायरेक्ट खून का रिश्ता है. सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नाउ गाइज रिमेंबर, हम वी हैव दिस बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग एवरीबडी एज ब्रदर एंड सिस्टर, बट इन इंग्लिश, इन रिलेशंस वाले क्वेश्चंस, व्हेन द वर्ड ब्रदर इज यूज्ड, इट मींस ओनली सगा वाला ब्रदर, यानी जिसका बाप मेरा बाप है और जिसकी मां मेरी मां है, वही मेरा ब्रदर है. कजिन्स को ब्रदर्स नहीं कहते. उसी हिसाब से जिसकी मां मेरी मां है, जिसका बाप मेरा बाप है, वही लड़की मेरी सिस्टर है, सगी बहन. बाकी कजिन्स को सिस्टर्स नहीं कहते. सो मामा का लड़का, चाचा का लड़का, फुआ का लड़का, ताया का लड़का, बुआ का लड़का, फलाने का लड़का, ढिमकाने का लड़का, वो सब आपके कजिन्स हो सकते हैं, मेल कजिन्स कहे जाएंगे. यू विल नॉट यूज द वर्ड ब्रदर फॉर देम. कजिन ब्रदर करके हम जो कहते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. इन इंग्लिश वी डू नॉट हैव अ वर्ड कॉल्ड कजिन ब्रदर. If it's a male, we call them male cousins. If it is a female, we call them female cousins. The word brother is only used for that person who is your sagga brother, and the word sister is only used for that who is your saggi wali behan. Did everybody get this? So when the word brother or sister is used, cousins ko usme count nahi karenge. Did everybody understand siblings wala funda? ब्रदर सिर्फ और सिर्फ सगे भाई को कहेंगे, सिस्टर सिर्फ और सिर्फ सगी बहन को कहेंगे. कजिन्स को ब्रदर या सिस्टर नहीं कहा जाता. दे आर नॉट योर ब्रदर्स और सिस्टर्स. कजिन्स आर ईदर मेल कजिन्स और दे आर फीमेल कजिन्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स योर ओन चिल्ड्रन, सो योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, दीज आर जनरली इंक्लूडेड इन ब्लड रिलेटिव्स, जिससे आप शादी करते हो. फॉर अ मैन, the wife is called the spouse. For a woman, the husband is called the spouse. तो husband या wife and in-laws, ससुर, सासू, ये सारे जो हैं in-laws जो हैं, they all fall under the category of legal relationship. So first we saw
we have to be careful about identifying the gender of the person. Second, we will identify the nature of the relationship. खून का रिश्ता है या शादी का रिश्ता है? Are we together so far? Did we understand the two formats of classification so far? First, based on gender. Second is based on nature of the relationship. Now, the third classification system that we will use is known as generation or level of relationship. Now, guys, remember, generation has nothing to do with age. उम्र के साथ जनरेशन या लेवल का कोई लेना देना नहीं है. इट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप विच विल डिफाइन कौन से जनरेशन में रिश्तेदार आते हैं. मीनिंग व्हाट? आपके सेम लेवल पे कुछ रिश्ते होंगे, आपसे ऊपर होंगे कुछ रिश्तेदार लेवल वाइज, एंड आपसे नीचे होंगे कुछ रिश्तेदार लेवल वाइज. सो लेट्स सी ईच ऑफ दीज थिंग्स. हमारे खुद के जनरेशन में कौन कौन होता है? हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारी लेवल के हैं. ऑल अवर कजन्स, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, मासी का लड़का लड़की, ऑल कजन्स बिलोंग टू अवर लेवल. The husband or the wife belongs to our level, and all our sister-in-laws and brothers-in-law, right? All jija, sala, sali, all these things. So brothers, sisters, cousins, husband, wife, and siblings of the wife or husband, all these relatives belong to the same level as us. हम जिस लेवल पे खुद को रखेंगे, इन सारे रिश्तेदारों को उसी लेवल पे रखेंगे. Did everybody understand the first level, the same level wale people? Are we together so far? Did we understand? हमारे लेवल पे कैसे कैसे लोगों को रखेंगे? Okay. Now, हमसे ऊपर, हमसे इमीडिएटली ऊपर कौन आएगा? तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, मदर एंड फादर, वो हमसे एक लेवल ऊपर हैं. उसी तरह हमारे जितने भी अंकल्स हैं, अलग अलग टाइप के अंकल्स आई विल डिस्क्राइब, बट जितने भी अंकल्स हैं, जितने भी आंटीज हैं, एंड जितने भी इन लॉ पेरेंट्स हैं, ससुर एंड सास, दैट इज फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. सो हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स, हमारे सारे अंकल्स, आंट्स, ये सारे हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं. वन जनरेशन अबाव वाले रिश्तेदार समझ में आ गए, जो जो हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ऑल द रिलेटिव्स, right? These are the relatives who will be called one level above us. Did everybody get this? कौन कौन हमसे ऊपर एक लेवल है? Okay. Now, हमारे पेरेंट्स से भी ऊपर जो लेवल है, यानी हमसे 2 लेवल ऊपर, सारे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए. So you'll have a total of 4 grandparents. पापा के पापा, which is your paternal grandfather और दादा. पापा की मम्मी, that is paternal grandmother, that is दादी. फिर मम्मी के पापा, maternal grandfather, which is नाना. एंड मम्मी की मम्मी, maternal grandmother, which is नानी. सो टोटल हमारे 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. दादा दादी जो पापा के साइड से होते हैं, एंड नाना नानी जो मम्मी के साइड से होते हैं. सो पापा के साइड से वी कॉल देम पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर. जो मम्मी के साइड से हैं, वी कॉल देम maternal grandmother and maternal grandfather. Did you understand the grand वाले relations? Grandfathers and grandmothers, 2 grandpa होते हैं, 2 grandma होती हैं, right? And उनके ऊपर जो होगा वो great grandfather, वो उसमें चला जाता है. Not to worry much about that. चलो, तो हमारा लेवल हमसे ऊपर और हमसे 2 लेवल ऊपर हमने देखा. हमसे नीचे लेवल में कौन आता है? If I want to put people in a generation below me, so my own children, it could be daughters and sons, it could be the children of my brothers and sisters, right? मेरे भांजा भांजी, भतीजा भतीजी. So जो females हैं, they are nieces, and जो males हैं, nephews. और मेरे बेटा बेटी के ने जिनसे शादी की है, मेरे दामाद, मेरी बहू, my children in law, all these categories are exactly one level below me. So my own children, children of my siblings, and the people to whom they are married, all this will be one level below me. Did you get this? One generation below, children, nieces, nephews, children-in-law. And
उनके भी नीचे यानी मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे पोता पोती, मेरे नाता नाती, दोज आर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के बच्चे जो मेरे लिए ग्रैंड चिल्ड्रन है, दैट विल बी 2 जनरेशन बिलो मी। जतिन, ये सारे रिश्तेदार आप अपने घर के सारे रिश्तेदारों को जानते हो, इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? इसमें कंफ्यूजिंग कौन सा पार्ट है? आपको पता है पापा मम्मी किसको बोलते हैं? डू यू अंडरस्टैंड दादा दादी किसको बोलते हैं? नाना नानी किसको बोलते हैं? डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। क्रिश, आपका एक बेटा है, वो बेटा किसी से शादी करता है, जिससे शादी करता है वो आपकी क्या हुई? बहू हुई। आपकी बहू जो है वो आपकी डॉटर इन लॉ है। आपकी एक बेटी है, आपकी बेटी किसी से शादी करती है, वो आपका दामाद हुआ, आपका दामाद आपका सन इन लॉ है। So instead of saying son in law and daughter in law, I'm using the word children in law. Son and daughter are children. So son in law and children in law and daughter in law, दामाद and बहू are children in law. समझ में आया? ठीक है। Now don't worry guys, if you are getting confused, I'm going to show you through a diagram. चलो, ये समझ में नहीं आया तो इसको एक डायग्राम बना के हम देखते हैं, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन कम हो जाएगा। चलो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो हम पूरी कहानी की शुरुआत खुद के साथ करेंगे। दिस इज मी, जय, योर फादर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट कॉल्ड बिग ब्रदर, बिग यानी कि बड़ा, राइट, एज इन साइज। फादर्स एल्डर ब्रदर इज व्हाट यू वांट टू नो, राइट? आई एम कमिंग टू दैट। हम हर रिश्ते का नाम देंगे, एंड इंग्लिश में काका और चाचा में कोई फर्क नहीं होता है, इट्स द सेम थिंग, इट्स कॉल्ड अंकल। बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड थ्रू अ डायग्राम। दिस इज मी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग मी एज अ मेल, सो आई एम पुटिंग एम, राइट? अब मैं दुनिया में आया तो मेरा एक बाप था और मेरी एक मां थी। So this is a male, he's my father. This is a female, she's my mother. तो मैं उनके एक जनरेशन के नीचे हूं। एंड फादर एंड मदर, मैंने फादर एंड मदर दोनों को सेम लाइन पे ड्रॉ किया है बिकॉज वो दोनों सेम जनरेशन को बिलोंग करेंगे। एंड उनके बीच में शादी का रिश्ता है, इसके लिए मैंने उन दोनों के बीच में डबल डॉटेड लाइन बना दिया है। फादर और मेरा डायरेक्ट खून का रिश्ता है, सो मैं डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन करता हूं। मदर एंड मेरा भी डायरेक्ट खून का रिश्ता है, तो मैं डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन करता हूं। सो दिस इज बेसिक फैमिली, माय फादर, माय मदर एंड मी। दिस डायग्राम shows gender of every person, it shows generation of every person, and it shows the nature of the relationship between every person. Did everybody understand this? ये सबको समझ में आया? द फर्स्ट बेसिक फैमिली यूनिट, पापा मम्मी और बच्चा। तो मैं अपने हिसाब से फादर एंड मदर को डायग्राम में सेट कर रहा हूं। इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलो अब इसी फैमिली ट्री को हम बड़ा करते जाते हैं। अब एक मेल है जो मेरे ही जनरेशन का है एंड उसके पापा एंड मेरे पापा सेम है, उसकी मम्मी एंड मेरी मम्मी भी सेम है। हु इज दिस पर्सन? ये जो बी है वो कौन है? Who is B? B is a male and we have the same father and mother. So B is a male. So I can very specifically say B is nothing but my brother, right? और ब्रदर मेरे ही जनरेशन का है, इसीलिए मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया है। समझ में आ गया? सिंपल। तो जैसे मेरा भाई हो सकता है, वैसे देयर इज अ फीमेल बिलोंगिंग टू माय जनरेशन, my daddy is her daddy, my mommy is her mommy. Who is S? S मेरी कौन लगती है? S is my sister, correct? तो जो B है and S है, वो how is B related to S? B is my brother, S is my sister. तो B and S का क्या रिलेशन हुआ? How is B related to S? B is the brother of S, correct? And S is the sister of B. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना समझ में आ गया सबको? मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरी बहन, इतना रिलेशन सबका आपस में समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलो अब दुनिया में मैं क्यों आया? क्योंकि मेरे मम्मी पापा थे। तो पापा को दुनिया में लाने के लिए उनके पापा रहे होंगे, दिस इज माई दादा, एंड उनकी मम्मी रही होगी, दिस इज माई दादी। तो दादा एंड दादी आपस में शादी से रिश्तेदार रखते हैं। ग्रैंडफादर इज डायरेक्टली ब्लड रिलेटेड टू फादर, grandmother is directly blood related to father.
सो GF इज माई दादा, GM इज माई दादी. ये समझ में आ गया. एंड वो मेरे फादर के ऊपर वाले जनरेशन में है, तो मेरे लिए तो 2 जनरेशन ऊपर हो गए. ये समझ में आ गया. दादा दादी सिंपल 6, इतना समझ में आया. राइट. तो अभी जैसे पापा के साइड से हैं वैसे मम्मी के साइड से भी होंगे. तो मम्मी के जो पापा हैं दैट इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर, दिस इज माई नाना. एंड मम्मी की मम्मी माई मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी, उन दोनों ने भी आपस में शादी की है. राइट. एंड डायरेक्ट रिलेशन ऑफ ब्लड विथ माई मदर. इतना समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? So this diagram shows you a relationship between a lot of people. Now, can you tell me how is B for Bombay related to GF? My my paternal grandfather. How is this B related to this GF? Grandson. Simple. Simple. How is this GM related to my father? How is my maternal grandmother related to my father? Mere, how, Hitanshi, listen to the question carefully. ये ग्रैंड मदर मेरे पापा की क्या लगती है? आई एम नॉट आस्किंग हाउ इज माई फादर रिलेटेड टू हर. मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मेरा बाप उनका क्या लगता है. द क्वेश्चन इज वो मेरे पापा की क्या लगती हैं. हाउ इज GM रिलेटेड टू माई फादर? सो ये मेरे मम्मी की मम्मी है, यानी मेरे पापा की सासू मां है. सो दिस इज द मदर इन लॉ टू माई फादर. सो गाइज यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आपको पूछे कि ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की क्या लगती है, तो आंसर है बहू. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के क्या लगते हैं, देन द अंकल इज ससुर. राइट. सो किसका रिश्ता किसके साथ पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. काजोल इज द वाइफ ऑफ अजय देवगन, बट अजय देवगन इज द हस्बैंड ऑफ काजोल. तो कौन से साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर अटेंशन पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग दिस सो फार गाइस? सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. किसका रिश्ता किसके साथ पूछा गया है, उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ जय वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, लेट मी पुट दैट अप. दिस पर्सन यू इज द ब्रदर ऑफ माय फादर. मेरे पापा के भाई हैं. बड़े हैं या छोटे हैं, अंग्रेजी में फर्क नहीं पड़ता है. इन हिंदी गुजराती बड़े भाई के लिए अलग नाम होता है, छोटे भाई के लिए अलग नाम होता है. थैंक गॉड अंग्रेजी में इतना कंफ्यूजन है ही नहीं. बड़ा हो या छोटा हो, भाई भाई होता है. सो दिस यू इज द ब्रदर ऑफ माई फादर. ये मेरे पापा के भाई हैं. हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू मी? मेरे पापा के भाई, जिसको आप या तो चाचा कहोगे या ताऊ कहोगे, वो आपके क्या लगते हैं? तो पापा के भाई इज नोन एज पैटर्नल अंकल. अंकल, सी गाइस, अंकल टोटल 4 होते हैं. राइट. एंड बहुत कंफ्यूजिंग होता है. सो वी विल से पैटर्नल अंकल. पैटर्नल अंकल यानी कि पापा के भाई. ये समझ में आ गया? सो दिस इज योर चाचा. इफ यू कैन रीड हिंदी आई पुट इट. पैटर्नल अंकल इज चाचा और ताऊ. ठीक है. अभी पापा की बहन भी हो सकती है. राइट. पापा की बहन भी है. सो हाउ इज पापा की बहन रिलेटेड टू यू? पापा की बहन यानी कि बुआ. सो दैट इज नोन एज पैटर्नल आंट. सिर्फ आंट नहीं कहेंगे, बिकॉज आंटी कई सारी होती हैं. तो पापा के जो भाई हैं उसको हम पैटर्नल अंकल कहेंगे. पैटर्नल मीन्स पापा के साइड से, अंकल इज सिंपल. एंड पापा की जो बहन है बुआ, दैट इज पैटर्नल आंट. उसी तरह मम्मी के जो भाई हैं, मम्मी के जो भाई हैं वो हमारे क्या हुए? मामा. दैट इज नोन एज मैटरनल अंकल. मम्मी के सगे भाई यानी कि हमारे मामा इज मैटरनल अंकल. एंड मम्मी की जो बहन है, मम्मी की जो बहन है दैट इज मासी, इज मैटरनल आंट.
यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक सारे रिश्ते समझ में आ गए? पापा के भाई एंड बहन को पैटर्नल आंट एंड अंकल कहेंगे, मम्मी के भाई एंड बहन को मैटरनल अंकल एंड आंट कहेंगे। अब उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं उसके लिए हम एक स्पेसिफिक नाम नहीं यूज करेंगे, हम उनके लिए हस्बैंड या वाइफ ऑफ कहेंगे। तो चाचा की बीवी को हिंदी में चाची कहते हैं, लेकिन पैटर्नल अंकल की जो वाइफ है उसको हम पैटर्नल आंट नहीं कहेंगे। पैटर्नल अंकल की वाइफ इज कॉल्ड वाइफ ऑफ पैटर्नल अंकल, दैट्स इट गाइस, डिड यू गेट दैट? चाचा को पैटर्नल अंकल कहते हैं, लेकिन उनकी बीबी को वाइफ ऑफ पैटर्नल अंकल कहेंगे, क्योंकि पैटर्नल आंट चाची को नहीं कहते, बुआ को कहते हैं। गाइस, आर वी टुगेदर सो फार? तो यार रिश्तों में खो गए? अभी तक समझ में आया? आई एम ट्राइंग टू यूज द हिंदी गुजराती वर्ड्स सो दैट द कनेक्शंस बिकम क्लियर इन योर माइंड। यस? सो मम्मी की बहन के हस्बैंड को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मम्मी की बहन के हस्बैंड, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू यू? मम्मी की बहन, मदर्स सिस्टर इज मैटरनल आंट, मासी, तो मैटरनल आंट्स हस्बैंड इज मासा। दिस इज सिंपली नोन एज हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, दैट्स इट, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, करेक्ट, एवरीबॉडी गॉट इट, वेरी गुड। जय, पापा के भाई को पैटर्नल अंकल कहते हैं, बड़े को और छोटे को दोनों को सिर्फ पैटर्नल अंकल कहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में सेपरेट नाम नहीं होता। भाई बड़ा हो या छोटा हो उसको पैटर्नल अंकल कहते हैं। बेटा यहां पे जो मैंने स्क्रीन में अभी आपको दिखा, ये पैटर्नल अंकल, ये पापा का भाई, ना बड़ा ना छोटा। वी डोंट यूज सेपरेट नेम्स लाइक चाचा एंड ताऊ। जैसे इन हिंदी ताऊ बड़े को कहते हैं, छोटे को चाचा कहते हैं। इन इंग्लिश दोनों को ही पैटर्नल अंकल कहते हैं। समझ में आया जय? जय, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जय, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आई होप यू डिड। ओके, तो ये थोड़ा, अब गाइस डोंट वरी, एग्जाम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अभी हम सिर्फ सारे नाम समझ रहे हैं, एग्जाम में तो बड़ा इजी होगा, मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे करवाऊंगा। बट अभी तक रिश्ते क्लियर हो रहे हैं कि अंग्रेजी में रिश्तों के नाम क्या होते हैं? यस? Okay, so here's a question. If this person, ये you जो है, this is my paternal uncle, then how am I related to him? वो मेरे लिए पैटर्नल अंकल हैं, मैं उनके लिए क्या लगता हूं? Prasanna is correct. So it depends on your gender. Like I started, my gender is male. I have defined my gender as male. So because I am a male, I will be the nephew of the uncle. जो अंकल होते हैं उसके सामने नेफ्यू होता है, भांजा या भतीजा। हिंदी में भांजा या भतीजा जो कहते हैं, राइट? इन इंग्लिश वी हैव वन कॉमन वर्ड दैट इज नेफ्यू। एंड हाउ इज दिस एस रिलेटेड टू दिस ए? ये मैटरनल आंट है, ये इनकी क्या लगती है? दैट इज अ फीमेल, एस इज अ फीमेल। सो भांजी या भतीजी जो हिंदी में कहते हैं, वी कॉल इट नीस। आर वी टुगेदर सो फार? भांजी या भतीजी इज नीस। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? राइट? सो दीज ऑल रिलेटिव्स आर रिलेटेड बाय ब्लड। अब शादी के बाद मेरे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, वो कौन कौन है? तो मैं हूं, मैंने शादी की, सो आई गेट अ स्पाउस, राइट? So my spouse, if I'm a man, it is the wife. If I'm a female, it is the husband. Right? तो सिंपल सा क्वेश्चन, जो मेरे वाइफ, आई एम अज्यूमिंग आई एम अ मेल, एंड अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे वाइफ के लिए जो फादर है वो मेरे लिए कौन है? मेरे वाइफ की जो फादर हैं वो मेरे क्या कहेंगे? करेक्ट, फादर इन लॉ। मेरे वाइफ की जो मदर है वो मेरे लिए कौन है? मदर इन लॉ, राइट? सो मेरे वाइफ के लिए डैडी, मेरे लिए फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, राइट? डायरेक्ट कनेक्शन यहां पे। मेरी वाइफ की जो मां है, मेरी सासू मां, इज माई मदर इन लॉ।
द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का भाई, मेरा साला. So the wife of the brother of my wife is my brother-in-law. Similarly, the sister of my wife is my sister-in-law. तो उनके जो साइड से रिलेटिव हैं मेरे लिए इन लॉज हो गए. उनके लिए फादर, मेरे लिए फादर इन लॉ. उनके लिए मदर, मेरे लिए मदर इन लॉ. माई वाइफ्स ब्रदर इज माई ब्रदर इन लॉ. माई वाइफ्स सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ. सो माई वाइफ्स सन इज माई लोचा मारा नहीं, थैंक गॉड. तो मेरे बीवी का जो बेटा होगा टेक्निकली मेरा भी वो बेटा ही होगा ना. मेरे बीवी के सारे इन लॉज मेरे इन लॉज नहीं होते. उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर मेरे लिए इन लॉज हैं. बट माई वाइफ्स डॉटर और माई वाइफ्स सन is also my daughter and my son. They are all belonging to us together, right? And of course, my daughter's husband is my son-in-law. My son's wife is my daughter-in-law, and their children will be my granddaughter or grandson depending on their gender. ये समझ में आ गया? इन-लॉज वाले फंडे समझ में आ गए? ठीक है. So how is my wife's husband related to me? How is my wife's husband related to me? मेरी जो बीवी का पति है वो कौन होगा? वो मैं खुद हूं. मेरी महक, इट्स नॉट हस्बैंड, इट इज माई सेल्फ. माई वाइफ्स हस्बैंड इज माई सेल्फ. मेरी बीवी का पति मैं हूं. इट्स नॉट माई हस्बैंड, इट्स मी. ओके, चलो. बेसिक फंडे समझ में आ गए रिलेशंस के. एंड द डायग्राम मैंने बताया, these diagrams are actually a good way of understanding. It takes care of three things, right? Write M or F to take care of gender. Use these double dotted lines or single line to identify the nature of the relationship. And every single level generation I draw different, so that आपको डायग्राम देख के पता चल जाए कौन किस लेवल पे है. तो चलो, let me now ask you a question, right? And let's see who gets it. So supposing the question says, pointing to a man in the photo, I said, brothers and sisters, I have none. This man's father is my father's son. So jo man in the photo hai, how is the man related to me? If I say brothers, pointing to that man, if I say brothers and sisters, I have none. This man's father is my father's son. How is the man in the photograph related to me? You have got four options, of course. And we have zero right answers so far. Nope, nope, nope. Most of you are getting it wrong. Siddhi, pehla line padho. Most of you are getting it wrong. Yeah, Shrey got it right. Baki most of you guys are getting it wrong. Locha maro cho bhai, locha maro cho. Guys, careful. You can do it either through a diagram or you can do it systematically through the given clues itself. But you have to be very careful. Chalo, let's see. पहला लाइन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन. पहला ही लाइन बोलता है ना मेरा भाई है ना बहन है. तो हाउ कैन बी योर आंसर? पहला ही लाइन बोलता है यू डोंट हैव अ ब्रदर, आई डोंट हैव अ ब्रदर. तो ब्रदर तो आंसर हो ही नहीं सकता. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सेकंड लाइन. इट सेज दिस मैन्स फादर इज माय फादर्स सन, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पोर्शन. माय फादर्स सन कौन है? मेरे बाप का बेटा कौन है? My father's son is me. क्योंकि ना मेरा भाई है ना बहन है, मैं इकलौता हूं. So instead of my father's son, can I write me? इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आया? My father's son की जगह पे मैं me लिख सकता हूं. चलो अब वापस सेंटेंस को पढ़ते हैं. This man's father is me. इस आदमी का मैं बाप लगता हूं. So now if I say this man's father is me, इस आदमी का मैं बाप हूं, तो ये मेरा कौन हुआ? How is this man related to me then?
How is this man related to me then? This man is my son. Simple. समझ में आया भाई लोग? You can solve it like this. या तो मैं एक और डायग्राम मेथड से बताता हूं. चलो. This man's father. So let us say this is the man. एक आदमी है जिसकी फोटोग्राफ लगी हुई है, right? This man's father. ये जो फोटोग्राफ है उसका बाप है. ये आदमी is my father's son. Let us say this is me. मेरे बाप, this is my father and this is my father's son. इस आदमी का बाप मेरे बाप का बेटा है और इस आदमी का बाप और मैं सेम लेवल पे हैं. मेरा कोई भाई बहन नहीं है. दैट मीन्स दिस इज माई. सो इस आदमी के बाप की जगह पे मैं आ जाता हूं. सो अल्टीमेटली दिस फोटोग्राफ इज दैट ऑफ माई सन. But if you are confused with the diagram, forget it. In this example, diagram is more confusing. Let's simply take a look at the question itself. Question से ही हम directly solve कर सकते हैं. इसमें actually आपको कोई जरूरत ही नहीं है diagram की. Let's take a look at the statement again. Vedika, my father's son. मेरे बाप का बेटा कौन है? Who is my father's son? Vedika, who is my father's son? सी इट कैन बी मी, या तो मेरा भाई हो सकता है. मेरे बाप का बेटा मेरा भाई भी तो हो सकता है. बट यहां पे इट सेज आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो माई फादर्स सन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट, कैन यू राइट मी? माई फादर्स सन इज मी. नाउ रीड द स्टेटमेंट अगेन. दिस मैन्स फादर इज मी. इस आदमी का मैं बाप हूं. तो अगर इस आदमी का मैं बाप हूं तो ये आदमी कौन है? मेरा बेटा है. डिड यू गेट दैट? How can you start solving from behind? Vedika, you will understand that in relations, solving the question from the end always gives you the right answer. How will it make the other questions wrong? Vedika, you will realize soon that you're always supposed to start from the end. क्वेश्चन में हमेशा, रिलेशंस के क्वेश्चन में हमेशा एंड से ही सॉल्व करते हैं, तो ही फटाफट आपको आंसर आएगा. डोंट वरी, विल सी मोर एग्जांपल्स. ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? So as Vedika also says, you always solve the relation वाला question from the end. I'll show you both the methods. जहां पे हम directly end से solve कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, या जहां पे diagram बन सकता है वो भी बताऊंगा. ठीक है? चलो, let's take one more question. It says, pointing to a lady on the stage, Deirdre said, she is the sister of the son of the wife of my husband. How is this lady related to Deirdre? Guys, let's see who can solve this. I've already solved it. 10 seconds is all it takes. With enough practice, you can look at the question and you can give the answer. Excellent. Hitanshi already got it. Very good. Yes, Mahek is correct. Yeah, very good. Now you guys are getting it. And all the girls are getting it first. All the girls in the batch are getting it first. Stereotype that girls are good at understanding relations. आज के क्लास में तो यही साबित हो रहा है. All the girls have given the right answer. So nice. But I think guys will also get it. I hope guys will also get it. चलो पहले डायग्राम बना के देखते हैं. So there is this lady on the stage, right? और there is Deirdre. So Deirdre से चालू करते हैं, right? Lady on the stage को बाद में दिखेंगे. Deirdre है. She says my husband. So जो Deirdre है, Deirdre का husband, wife of my husband. तो Deirdre के husband की wife is खुद Deirdre. Son of that person, that is son of Deirdre. Sister of the son is this, and this is the lady on the stage. तो Deirdre के husband की बीवी की बेटी का बहन is direct from the diagram नीचे के लेवल पे has to be daughter. अब डायग्राम नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर देते हैं. वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति की बीवी, इज मी. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, कैन आई से द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड इज मी. सन ऑफ मी, द सन ऑफ मी इज माई सन. सिस्टर ऑफ माई सन, द सिस्टर ऑफ माई सन इज माई डॉटर. सो शी इज माई डॉटर. खत्म. सी इज द आंसर. डायग्राम की भी जरूरत नहीं है.
अंडरस्टूड वेदिका? लास्ट से करते आएंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा. ऑलवेज राइट हैंड साइड लास्ट से सॉल्व करते जाने का. तो डायग्राम के बिना ओरली भी आप आंसर कर सकते हो. डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? जय, जतिन, डिड यू गाइस गेट इट? Yes. Chalo, let's try the next one then. Tell me. Adam says, this girl is the sister of the grandson of my mother. Then how is the girl related to Adam? Nope, nope, nope. No correct answers so far. No, 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 no. In spite of getting the right answer, everybody is giving me the wrong answer. In spite of doing it, वेदिका ना आपने तो पूरा जनरेशन ही लोचा मार दिया है. But all the guys are solving it correctly, but still giving me the wrong answer. Now Hitanshi got what I'm trying to say. Hitanshi got it. Now Hitanshi got it. All of you are solving it correctly, but giving me the wrong answer. Chalo, let's take a look at it. Grandson of my mother, right? So I can draw me. This is me. This is my mother. So मेरे mother के लिए grandson can be here. So sister of this grandson can be this. So this obviously is my daughter. Lekin guys, my mother's grandson is not necessarily my son. I can have a sibling, and that sibling can have a son. This is also my mother's grandson, and his sister is my niece. So my mother's granddaughter could either be my daughter or it could be the daughter of my brother or sister. So daughter भी हो सकती है, लेकिन niece भी हो सकती है. And because आपको पता नहीं, the answer is cannot be determined. Answer can be daughter, answer can also be niece. क्योंकि दोनों आंसर पॉसिबल हैं, so you have to mark cannot be determined. It can be daughter, it can be niece. So although you got the answer correct, it is not the one to be marked. Granddaughter, daughter सही है, niece सही है, but दोनों में से exact कौन सा है हमको नहीं पता. And because we have the option cannot be determined, we have to take the option cannot be determined. Did everybody understand this one? Guys, did you understand this question? Right? So always think multiple relations होते हैं, multiple relations होते हैं, right? Always think alternate possibilities. Chalo, let's take one more. Pointing to a lady, a man said, her husband is the only son of my mother. How is the lady related to the man? Anmol, correct. Most of the time you will not require any diagram. Question को देख के ही आप solve कर सकते हो. Word orally भी कर सकते हो. Diagram से करना है, it's okay. But a lot of people will be able to do it orally. Step by step. Last से relations को जोड़ते जाओ. So let's see. Only son of my mother. अब एक आदमी अगर बोलता है ओनली सन ऑफ माई मदर, सो उसका मतलब है द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मां का इकलौता बेटा मैं हूं. सो हर हस्बैंड इज मी, उसका पति मैं हूं. तो एक औरत का अगर मैं पति हूं तो वो मेरी क्या लगती है? सिंपल, वाइफ. सो आंसर इज वाइफ. दैट्स इट. सी, 10 seconds. All it takes is 10 seconds to read and solve. Did everybody get this one? I hope everybody understood.
बच्चा लोग किधर भी डाउट हो पूछ लेने का, राइट? आई नो, अंडरस्टैंड, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेने का, बिकॉज इस चैप्टर में इट्स वेरी इजी टू कंफ्यूज रिलेशंस। बाप की जगह बेटा लिखोगे, बेटा की जगह भाई लिखोगे, लोचा हो जाएगा। माँ की जगह बहन लिख दोगे, लोचे पड़ जाएंगे। सो बी केयरफुल। Vedika, maximum time you should spend now. Hardly one or two questions generally come in most exams of this type. Once you have got enough practice, within 30 to 45 seconds, you should be able to read the question and solve it. इस लेवल का अगर होगा 30-35 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 45 सेकंड्स। एंड बिलीव मी, विद प्रैक्टिस आई हैव सीन गाइस डू दिस इन लेस देन 15 सेकंड्स। 30-45 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। यू कैन एक्चुअली डू दिस एग्जांपल्स इन लेस देन हाफ अ मिनट। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बट वंस यू डू सम 30-40 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, इतनी आदत हो जाती है, बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ रिश्ते होते हैं, तो इतनी आदत हो जाएगी कि रिलेशन के क्वेश्चन तो पप्पू होंगे। सो डोंट वरी, प्रैक्टिस इजीली एनीबॉडी कैन डू इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। Alan told Monica, yesterday I met the son of my wife's father-in-law. कल मैं अपनी बीवी के ससुर के बेटे से मिला। कल मैं किससे मिला? See guys, I sometimes find for those who don't have English very powerful, वो उसी क्वेश्चन को अगर खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सोचते हैं तो दे आर इजीली एबल टू आंसर। ऑफ कोर्स सम गेट कंफ्यूज्ड इन हिंदी और गुजराती, फॉर देम इंग्लिश इज इजी। सो विच एवर लैंग्वेज इज इजी, जिस लैंग्वेज में आपको रिश्ते जल्दी समझ आते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई मेट द सन ऑफ माय वाइफ्स फादर इन लॉ, यू कैन से मैं अपनी बीवी के ससुर के बेटे से मिला, इफ दैट इज सिंपल। यस, मोस्ट गाइज आर राइट। महक, नो। सो मेरी बीवी का ससुर, माई वाइफ्स फादर इन लॉ। हु इज माई वाइफ्स फादर इन लॉ? मेरे बीवी के लिए ससुर कौन होगा? माई फादर। सो माई वाइफ्स फादर इज माई फादर, राइट? सो आई मेट द सन ऑफ माई फादर। अपने बाप के बेटे से मिला। मेरे बाप का बेटा मेरा कौन है? या तो मैं खुद हूं या तो मेरा भाई है। अब सेल्फ का तो ऑप्शन नहीं है, सो मेरे बाप का बेटा इज माई भाई। सो आंसर ब्रदर। Did everybody get this one? Mehak, it's not son-in-law. It's my brother. See, this is me. This is my wife. This is my wife's father-in-law. My wife's father-in-law is my father. My father's son is my brother. मेरे बाप का बेटा मेरा भाई है, same level पे. So the answer is brother. महक, चलो फिर से देखो। माई वाइफ्स फादर इन लॉ, मेरी बीवी के लिए ससुर कौन है? महक, लेट्स पुट इट इन हिंदी। मेरी बीवी के लिए, फॉर माई वाइफ, हु इज हर फादर इन लॉ? माई वाइफ्स ससुर इज माई फादर। सो वाइफ्स फादर इन लॉ की जगह कैन आई से फादर? तो वाइफ्स फादर इन लॉ को कैंसल करके उसकी जगह पे फादर लिखो। तो आई मेट द सन ऑफ माई फादर। माई सन ऑफ माई फादर, मेरी बाप का बेटा कौन है? मी, बट मी ऑप्शन में नहीं है, राइट? तो मेरा बाप का बेटा अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बाप का दूसरा भी तो बेटा हो सकता है। जरूरी नहीं ना बाप का एक ही बेटा हो। सो अगर मेरे बाप का कोई दूसरा बेटा है, मैं वो मेरा क्या लगेगा? ब्रदर, करेक्ट, भाई। सो माई सन ऑफ माई फादर इज माई ब्रदर, दैट्स इट। डिड यू गेट इट नाउ? Did you get it now? I hope you understood it, right? Simple? Okay. Let's take one more question then. Pointing to a man, Marilyn said, he's the youngest son of my father-in-law's only son. He's the youngest son of my father-in-law's only son. How is Marilyn related to this youngest son's father? दिखने में complicated, actually very simple problem. Step by step, guys. Do it step by step. Most guys getting it right. Very good. Hitanshi, Prasanna, correct. Ooh, everybody's getting it right. So, Marilyn, let's start. This is Marilyn. My father-in-law. So Marilyn
is married to somebody. This is the husband of Marilyn, and this is the father-in-law. जो husband का बाप है वो Marilyn का father-in-law हुआ. Now, my father-in-law's only son. My father-in-law's only son is my husband. मेरे ससुर का इकलौता बेटा is my husband. So my father-in-law's only son की जगह can I say my husband? So instead of my father-in-law's only son, I will write my husband. So he's the youngest son of my husband. तो मेरे पति का बेटा मेरा भी तो बेटा हुआ. The youngest son of my husband is my son. So he is my son. This person is my son. But the question is, how is Marilyn related to the son's father? ये जो आदमी है ये तो इसका सन है, बट इसका बाप जो है वो मैरलिन का क्या लगता है? तो मैरलिन के बेटे का बाप मैरलिन का पति हुआ. सो मैरलिन उसकी पत्नी हुई. सो मैरलिन इज द वाइफ ऑफ द पर्सन. आंसर इज सी. आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस वन. कैन आई हैव अ क्विक yes if you have got it? Did everybody understand this question? Excellent. Chalo. Moving on. Next one then. Now this is slightly different from the other questions, but we will get it. A family consists of a husband and wife, their 3 sons and 2 daughters, 3 wives of the 3 sons. Total, how many females are there in this family? I think this is simple. Prasanna, counting mistakes. Others all getting it right. Prasanna, just give it a now you got it. Very good. Oh, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. So एक husband है, right? Husband है बोले तो male 6, and he has a wife that is a female. They have 3 sons, right? So male, 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 and they have 2 daughters, so female and female. And each son has wives, so wife, wife, and wife. So कितनी females हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are a total of 6 females that we know in this family. I think everybody got this one. No confusions in this question. Right? Okay. I want to do one more type of question. So I'm going to skip a couple of questions. I'm just going to skip this one question. I want to take a look at one more type of question. In such questions, symbols are used to give you the clues. It is said A plus B means A is the sister of B. If it is written A minus B, then it means A is the brother of B. If it is written A cross B, then it means A is the daughter of B. And if it is written A% B, then it means that A is the mother of B. So they are giving you the meanings of these symbols, right? Now, from the given options, you have got options. From these options, which particular thing says that L and N are wife and husband? So you have to apply these rules to these each option and identify which option says that L and N are wife and husband. So let's take a look at the first option. First option में क्या लिखा है? L percentage M. Percentage का मतलब क्या है? L percentage M. Percentage means mother. So we have to read it as L is the mother of M. Right? L percentage M का मतलब है L is the mother of M. फिर M cross N का मतलब क्या है? Cross का मतलब है daughter. So M is the daughter of N. So M is the daughter of N. Does this say that L and N are wife and husband? If M is the daughter of L and N and L is a female, then M obviously has to be a male and they have to be wife and husband. So first option itself tells me that L percentage M cross N means L and N are wife and husband. अगर पहले ऑप्शन में आंसर नहीं आता तो सेकंड को चेक करना पड़ेगा. सेकंड से आंसर नहीं आता तो थर्ड ऑप्शन देखना पड़ेगा. बट यहां पे पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Did you understand how we use the given symbols to interpret?
सिंबल्स वाले क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया सबको? चलो दो तीन और क्वेश्चन करते हैं ऑफ दिस टाइप टू अंडरस्टैंड. नाउ सपोजिंग इट सेज A plus B means A is the sister of B. A minus B means A is the brother of B. क्रॉस का मतलब है डॉटर, परसेंटेज का मतलब है मदर. तो L प्लस एम माइनस एन प्लस ओ माइनस पी क्रॉस क्यू, इसको आप सॉल्व करोगे तो इस डायग्राम जो जो बनेगा उसमें टोटल कितनी फीमेल्स मिलेंगी आपको? इसके सॉल्यूशन में टोटल कितनी फीमेल्स मिलेंगी आपको? When you solve this, L plus M minus N plus O minus P cross Q, total how many females are there in this particular relationship? Nope. Hitanshi, Anushka, nope. Jatin, correct. Mahek, no. Jatin is correct. नो अदर्स लोचे मार रहे हैं, दूसरे लोचे मार रहे हैं. जनता हा चलो आई शो यू द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच एवरीबडी इज मेकिंग. चलो इसको इंटरप्रेट पहले कैसे करेंगे. L प्लस एम मीन्स L इज द सिस्टर ऑफ M, दैट मीन्स L इज अ फीमेल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. M माइनस N मीन्स M इज द ब्रदर ऑफ N, सो M इज द ब्रदर ऑफ N, सो M इज अ मेल. ये भी हो गया. N प्लस O, N plus O, that N is the sister of O, so N is the sister of O, female बन गई. O minus P, O is the brother of P, so brother यानी कि मेल है. P cross Q, P is the daughter of Q, daughter यानी कि फीमेल है. सो बताओ बच्चा लोग डायग्राम के अंदर टोटल कितनी फीमेल्स हैं? L is female number 1, N female number 2, P is female number 3. लेकिन बच्चा लोग Q का जेंडर शू छे. What is the gender of Q? Can you tell me what is the gender of Q? Is Q a male or a female? Can somebody tell me what is the gender of Q, male or female? Exactly, you don't know because daughters can be for mothers, daughter can be for father. So either answer is 3 if Q is a male, or it could be 4 if Q is a female. But क्योंकि आपको Q का gender नहीं पता चल रहा, so the answer is cannot be determined. You do not know whether Q is a male or a female. Never assume a gender. तो जब तक exact gender नहीं पता, you cannot answer this question. So this ends up with cannot be determined. ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? Why it is cannot be determined? Because आपको Q का जेंडर नहीं पता. You cannot determine whether Q is man or Q is a woman. समझी होगी. Let's do one more question of this type. Again, A plus B means sister, minus means brother, cross means daughter, percentage means mother. Then P plus Q minus R cross S percentage T का मतलब क्या है? From the given options, what does P plus Q minus R cross S percentage T mean? Yes, guys. Yes, Anushka, correct. Mahek, correct. I think relatively easy. Dub dub sub diagram hi banana. I think everybody is getting it correct, right? So let's quickly see. P plus Q means P is the sister of Q. Q minus R. Q is the brother of R. R cross S. R is the daughter of S. And S percent T. S is the mother. S is the mother of T.
अब टी का जेंडर मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरत भी नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि एस इज द पेरेंट एंड पी क्यू आर टी आर द चिल्ड्रन. सो पी क्यू आर टी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एस इज समथिंग विच वी कैन पक्का से. जतिन, डी कैसे है? एस उन सबकी मदर है, एस उनकी बहन थोड़ी, एस सबकी मां है, बहन नहीं है. जतिन समझ में आया? एस इज द मदर, एस कैन नॉट बी अ सिबलिंग. सिबलिंग मीन्स भाई बहन, एस बहन नहीं है, मम्मी है. डिड एवरीबडी गेट दिस वन? So guys, did you understand the two basic types of questions which can come in relation? Either it can be a word problem, जहां पे हम पीछे की तरफ से सॉल्व करते जाते हैं, ओरली कर सकते हैं, या डायग्राम मेथड से कर सकते हैं, और यू कैन हैव क्वेश्चंस ऑफ सिंबल्स जो अभी हमने किया, जहां पे ऑप्शंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे. These are the two types of questions which can come in relations. All you need to do is practice a lot of questions. Remember the three things which we talked about. Always examine the gender of the person, examine the nature of the relationship, कि blood है या relation legal है, and finally generation के हिसाब से सोचो. ये तीन चीजें identify करोगे तो easily you will be able to answer the questions. So the work is obviously analytical reasoning book का जो relations का chapter है उसमें दो exercises हैं. You have to complete both the exercises as homework right within this week. Pretty simple questions. Of course, if you have doubts, you can always ask Telegram or WhatsApp. But that's it for the day. We are pretty much done for the day. If you have any doubts, you can stick around and ask. Else, you can exit the session. The work we completed is the two exercises of relations from the analytical reasoning book. Any doubts, you can hang around and ask. Else, you may quit the session. Have a good day. Stay safe.